हमारा टॉपिक है magnetic field strength at any point on an equatorial line of a magnetic dipole or bar magnet. ठीक है? As you know that in case of a bar magnet, in case of a magnetic dipole, there are two important axes. One is called axial line and second is called equatorial line. Axial line is a straight line, imaginary line which passing through the two poles of a bar magnet, north pole and south pole. Okay? And the equatorial line is a one straight line which passing through the center of the dipole and is perpendicular to the axial line of the bar magnet. Is this clear? Okay. And we have already derived an expression for the magnetic field strength at any point on the axial line of a bar magnet, but today we will derive the expression for the magnetic field strength at any point on the equatorial line. Is this clear? Okay, so let's start. For that, let's consider a bar magnet. Consider a bar magnet. Consisting of two poles, unlike poles, south pole and north pole, of equal strength. Is this clear? इन दोनों की strength equal है, and suppose this is the distance between south pole and north pole, and this is what we call magnetic length or magnetic dipole length. Suppose here it is south pole, यहाँ पे है north pole. Is this clear? And south pole की strength है -m and north pole की है +m. Is this clear? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ डायपोल ले लेंगे, वो हम O से रिप्रेजेंट करेंगे. Is this clear? O से रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर ऑफ द डायपोल. Okay. As you know that the distance of south pole from the center of the dipole is equal to the distance of north pole from the center of the bar magnet dipole. Is this clear? बराबर डिस्टेंस होती है. अगर ये L है, ये भी L होगी. Is this clear? Okay. So what is the magnetic length then? It is 2L. जहां पे हम लिखेंगे अब consider a bar magnet of एक बार मैग्नेट हमने कंसिडर किया. Consider bar magnet. Okay, and suppose M be the strength of each pole and 2L be its magnetic length. Then the magnetic dipole moment. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे m से. That the magnetic dipole moment of the bar magnet would be, it is defined as the product of strength of either pole, that is m, and the dipole length, magnetic length. What is magnetic length? It is twice L. Twice L. Is this clear? As you know that the direction of magnetic length is same as that of the magnetic dipole moment. Its direction is from what? From, यहाँ से लिखेंगे हम, जो magnetic dipole moment है इसकी direction है from south to north. इसी तरह से जो L है इसकी भी direction है, dipole length की जो direction है, magnetic length की जो direction है, it is from south to north. Is this clear to you? Okay. और वो क्या राइट एज इस तरह भी लिख सकते हैं, M is equal to twice L M. Keep it number 1. या इस तरह भी लिख सकते हैं. ओके, चलिए यही रखेंगे नंबर 1. ओके, एंड नाउ वी विल ड्रॉ टू एक्सिस हियर. जैसे पहले मैंने बता दिया, या हमने डायपोल कंसिडर किया, इसका डायपोल मोमेंट है 2Lm, and now we will draw two axes. We will consider two axes. ठीक है?
First, axial line. Draw axial line. Axial line, as you know, is a straight line, imaginary line, which passes through what? South pole and north pole. This is what we call axial line. Is this clear? Okay. And another line which passes through the center of the dipole and is perpendicular to the axial line, which is called equatorial line. This is the equatorial line here. Okay, it passes through center of the dipole. तो यहाँ से भी निकलती है, मान लीजिए. ओके, एंड नाउ जो एक्सियल लाइन है, मान लीजिए इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से, एंड दिस वर्टिकल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई डैश. ठीक है, तो यहां पे O है. O इज द सेंटर ऑफ द डायपोल. ओके, S यहां पे है. दिस इज S here, this is N here. ये याद रखना. And now what is our aim? Our aim is to calculate what? Magnetic field strength at any point on the what? This equatorial line. Is this clear? And first and foremost, यहां से मैं बता दूं, हम assume करेंगे जो भी डायरेक्शन होगी towards right, ठीक है ना, उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. आई कैप यूनिट वेक्टर. और जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट वो देयरफॉर होगी माइनस आई कैप. इज दिस क्लियर? और जो डायरेक्शन होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपवर्ड्स वो हम जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो डायरेक्शन होगी वर्टिकल डाउनवर्ड्स वो हम माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. इज दिस क्लियर? ओके. So I is the unit vector in x direction, minus I cap is the unit vector in towards left. J is the unit vector along y-axis upwards and downwards, minus J होगा. Is this clear? Okay. And now let's consider a point of observation somewhere. एक point of observation ले लेंगे somewhere here. Suppose here is the point of observation P, at which the magnetic field strength due to this dipole is to be calculated. Okay, यहाँ पे हमें बताना है magnetic field strength कितनी होगी. Suppose this point is at a distance r. It is at a distance r from the center of the dipole. Okay, and now what we do here, we will use here सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे कि हमने डिराइव की थी एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, वहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया, यहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड देन ड्यू टू साउथ पोल, एंड टेक द वेक्टर सम ऑफ द टू. दिस विल गिव द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू बार मैग्नेट. इज दिस क्लियर टू यू? बस यही प्रोसीजर है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो यहां पे जैसे कि मैंने अभी बता दिया, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट, इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू ट्वाइस एम एल. Okay, or we can write it as L is the 2L is the dipole length, या इस तरह भी लिख सकते हैं, M is equal to twice M L I cap. Is this clear? Keep this number 1. I cap हमने अभी बता दिया, जो भी डायरेक्शन होगी towards right वो I cap से रिप्रेजेंट करेंगे. I cap is a unit vector, so I cap is the direction of L. डायपोल लेंथ की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की. डायपोल लेंथ की, मैग्नेटिक लेंथ की भी वही डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की भी वही डायरेक्शन है. इज दिस क्लियर? ओके, कीप इट नंबर 1. एंड नाउ यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P. तो अब फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल ओनली. ठीक है, तो यहां से ये डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी ऐसे लेकर P तक.
एक लाइन ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज द लाइन। सो SP is the distance. SP is the distance of point P from the south pole. Okay, जो यहां से यहां तक लेंथ है, इट इज L। ठीक है, जो यहां से यहां तक लेंथ है वो भी L है। ठीक है, ओके, ये R है। तो SP किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दिस वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सिमिलरली यहां से भी इसको मिलाएंगे, नॉर्थ को P के साथ मिलाएंगे, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। Okay, this is the distance of point P and P with respect to the North Pole. Okay, यहाँ पे ये जो distance है from O to N, it is L, ये है R, ये R के बराबर है। Okay, then this hypotenuse would be equal to what? Under root of R square plus L square. Is this clear? Okay, R square plus L square. मान लीजिए ये यहां से एंगल बना रहा है थीटा, ये भी थीटा होगा, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज दिस क्लियर? ओके, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, बराबर एंगल्स होंगे। एंड नाउ व्हाट वुड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल ओनली? यहां पे देखेंगे नाउ मैग्नेटिक field strength at P due to south pole only, south pole only। खाली साउथ पोल कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? दैट इज BS ड्यू टू साउथ पोल इज इक्वल टू, इट इज म्यू नॉट divided by 4 pi into strength of the south pole, as you know, that is M, divided by the south pole is here the source pole, तो इसी की स्ट्रेंथ यहाँ पे कंसिडर करनी है, एंड डिवाइड बाय द सेपरेशन स्क्वायर। तो सेपरेशन है SP square, okay, and whatever the direction of this magnetic field strength at point P due to south pole only, so its direction is defined by the hypothetical north pole। यहाँ पे हम hypothetical north pole रखेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। ये south pole उसको क्या करेगा? Attract, so that hypothetical north pole will accelerate towards the south of the bar magnet। Is this clear to you? तो इसकी डायरेक्शन वही होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो hypothetical north pole मूव करेगा। Is this clear to you? So it will move in this direction। Is this clear? Along PO, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिंग, तो डायरेक्शन लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा, इट इज BS कैप, यूनिट वेक्टर हमने BS से रिप्रेजेंट कर दिया। सो BS इज यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में? फ्रॉम P to S। यहाँ पे लिखेंगे एक्टिंग along PS, ठीक है, along PS and be represented by, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? PA से, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो PA से। इज दिस क्लियर? सो PA represents what? BS। It represents, this PA represents what? BS। This is BS here, vector, okay? And now keep it, this is first, यहाँ पे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व
bs into 2 perpendicular vectors. 2 perpendicular vectors है, 2 rectangular components. या लिखें 2 rectangular components. One along x-axis and second along y-axis. Is this clear? Resolve करेंगे इस वेक्टर को. Resolve this. तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? One vs, एक कंपोनेंट vs किस डायरेक्शन में होगा? तो vs लिखेंगे, एक कंपोनेंट इस तरह से होगा ds. चलिए रिजॉल्व करते हैं इसको. ड्रॉ 2 एक्सिस हेयर, 1 पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, ओके. अब अगर ये एंगल थीटा है, थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. इज दिस क्लियर? ओके. यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पर, तो ये बनेगी बेस, ये होगा परपेंडिकुलर. तो बेस कंपोनेंट होगा इसका यहां से यहां तक, बेस कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन. इसका वो होगा कितना? दैट वुड बेस कंपोनेंट वुड बी bs cos ऑफ थीटा. इज दिस क्लियर? ओके. अब दूसरा कंपोनेंट होगा, तो वो उसके लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये होगा. This is the second component, second rectangular component of the magnetic field, strength bs. एक कंपोनेंट यहां से होगा, दूसरा कंपोनेंट यहां से होगा. This is bs cos theta and this is bs sin theta. This is clear? Okay. इसकी डायरेक्शन कहाँ है? Towards left. This is clear? लेफ्ट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है. तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन होगी वो हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. आई कैप यहाँ पे आएगा माइनस. इज दिस क्लियर? और ये नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा जे, और नीचे की तरफ तो माइनस आएगा यहाँ पे. दीज आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? bs. तो यहाँ पे आएगा कौन कौन सा कंपोनेंट है? द फर्स्ट कंपोनेंट इज माइनस bs cos of theta I cap, and the second component is minus bs sin of theta j cap. Okay, keep it number 2. Is this clear? Okay. इसी तरह से अब हम देखेंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल ओनली. इज दिस क्लियर? यहां पे लिखेंगे मैग्नेटिक strength at P due to North Pole only. अब नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हम मेजर करेंगे, और वो निकलेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट नॉर्थ पोल, it would be equal to what? कितना होगा? That would be mu naught divided by 4 pi into m divided by distance square, square of the distance, and p square, and p square. Okay, and now this is n p square here. Whatever the direction, इसकी डायरेक्शन हम बी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, बी एन कैप. ठीक है. अब देखते हैं कहां से है ये डायरेक्शन. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी एन? यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, ये नॉर्थ पोल उसको रिपेल करेगा, एंड दैट वुड मूव, दैट वुड एक्सेलरेट इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन अलोंग द एन पी प्रोड्यूस्ड. वो यहां से मूव करेगा, यहां से चला जाएगा. ठीक है, इसको यहां से प्रोड्यूस करेंगे. It will move, accelerate in this direction along and P onwards. ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट यहां पे लिखेंगे एक्टिंग
along NP onwards या produced NP produced, ठीक है, ओके, and be represented by, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस वेक्टर को, ठीक है। तो एज यू नो हियर, अब देखिए म्यू नॉट 4 पाई m डिवाइड बाय sp स्क्वायर np स्क्वायर, sp है ये डिस्टेंस, np है ये डिस्टेंस, sp इज इक्वल टू अंडर टॉप r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर and np is also equal to r square plus n square. These are the two sides of what? An isosceles triangle. Therefore, इसका मतलब क्या है, np sp के बराबर होगा. Is this clear to you? So it means that जितना कंट्रीब्यूशन किसका होगा, साउथ पोल का एट पॉइंट P, उतना ही नॉर्थ पोल का भी कंट्रीब्यूशन होगा एट पॉइंट P. Is this clear? दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, मगर डायरेक्शन डिफरेंट है. Is this clear to you? So far as the magnitude is concerned, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, जो साउथ पोल यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड होगा वही होगा नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. इज दिस क्लियर? ओके, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन इज डिफरेंट. तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन इज डिफरेंट. इज दिस क्लियर? तो जितना बड़ा एरो यहाँ पे यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट व्हाट BS, उतना ही बड़ा एरो यहाँ से ड्रा करेंगे टू रिप्रेजेंट व्हाट BN. क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए दोनों एरो की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी. इज दिस क्लियर? तो यहां से एक और एरो ड्रा करेंगे. ठीक है, ओके. सपोज दिस इज PC एंड रिप्रेजेंट बाय PC. PC से रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट BN. सो दिस रिप्रेजेंट से BN. दिस इज BN हियर. दिस इज BN. Is this clear? Okay. अब इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी रिजॉल्व करते हैं. Now resolve BN into two rectangular components. ठीक है, चलिए रिजॉल्व कीजिए इसको BN को. ये BN है, ठीक है. तो एक ये जो एंगल होगा यहाँ पे ये भी थीटा के बराबर है. ये अगर थीटा है, ऑलरेडी एंगल थीटा, ये भी थीटा है. इज दिस क्लियर? इसी तरह से इफ दिस इज थीटा, दिस वुड आल्सो बी थीटा. कॉरस्पॉन्ड, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ओके. तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन दिस एक्सिस, जो यहां से यहां तक इंटरसेप्ट होगा. ठीक है, दोनों का इंटरसेप्ट बराबर बनेगा. दोनों का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा. ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, वो भी यहीं पे आएगा. तो दोनों वेक्टर्स एक ही जगह होंगे, दोनों कंपोनेंट्स. ठीक है, इसका कंपोनेंट है B cos ऑफ थीटा I कैप. इज दिस क्लियर? तो इसी तरह से जो BN का कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट. इज दिस क्लियर? ओके, वो भी बेस कंपोनेंट कहलाएगा. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस BN cos ऑफ थीटा, बेस कंपोनेंट. और डायरेक्शन क्या होगी, I कैप. इज दिस क्लियर? ओके. इसी तरह से इसका एक और कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में. इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे y एक्सिस को. दिस y एक्सिस है. ओके, तो यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. तो यहां से एक और इंटरसेप्ट बनेगा. तो ये होगा इसका दूसरा कंपोनेंट BN sin ऑफ थीटा. इट इज अलोंग y एक्सिस, तो J कैप से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. इज दिस क्लियर यू? तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या है,
bn cos of theta I cap and bn sin theta j cap. Is this clear to you? तो यहां पे लिख सकते हैं हम bn is equal to, इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे अलग अलग. एक कंपोनेंट क्या है? bn cos of theta I cap, ये आएगा माइनस. एंड द सेकंड कंपोनेंट इज bn sin plus bn sin of theta j cap. Is this clear? Okay. Keep it number. This number 2, this number 3. Is this clear? अब देखना है नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P. तो कैसे देखेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P किसके बराबर होगा? तो इन दोनों का वेक्टर सम लेना है. Now the net magnetic field strength at P at point P due to the bar magnet is given by. ठीक है. अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, नेट फील्ड स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे बतानी है कितनी होगी ड्यू टू बोथ द पोल, ड्यू टू बार मैग्नेट. तो उनका लेना है वेक्टर सम. ठीक है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P टू द बार मैग्नेट B इज इक्वल टू BS प्लस BN. इज क्लियर? वेक्टर सम ऑफ द टू यूजिंग और BS and BN. BS in terms of its components. ठीक है. वो क्या है इसके कंपोनेंट यूजिंग सेकंड और थर्ड. ये पुट करेंगे BS के बदले, ये आएगा माइनस BS cos ऑफ थीटा I माइनस BS sin ऑफ थीटा J. इज दिस क्लियर? अब इसके बाद प्लस BN ऐड करेंगे, इसके कंपोनेंट प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे. BN cos ऑफ थीटा I कैप, फिर आएगा प्लस माइनस, सॉरी प्लस ही है, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस ही आएगा, प्लस BN sin of theta J. Is this clear? Okay. Now simplify this. Since BS is equal to BN and both are equal to BS equal to BN, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है. और किसके बराबर है? म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, M डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. इज दिस क्लियर? यह है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल और ड्यू टू नॉर्थ पोल. दोनों का मैग्नीट्यूड होगा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, वो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ जो है सो फार एज द मैग्नीट्यूड इज कंसर्न, वो सेम है एट पॉइंट P. इज दिस क्लियर? ओके. अब ये पुट करेंगे यहाँ पे, वी गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इक्वल BS के बदले BSC लिखेंगे यहाँ पे, माइनस BS cos ऑफ थीटा I माइनस BS sin ऑफ थीटा J. BN के बदले भी BS लिख सकते हैं, BS cos ऑफ थीटा I प्लस BN के बदले BS लिखना है, BS sin ऑफ थीटा J. इज दिस क्लियर? ओके. दिस इज BS sin थीटा J, दिस इज BS sin थीटा J. दो बराबर है दोनों, पर एक है माइनस, दूसरे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा. इज दिस क्लियर? ओके. एंड देयरफॉर व्हाट वी गेट हियर, माइनस कॉमन आएगा, BS भी बाहर आएगा. ठीक है. इट इज माइनस BS cos थीटा I माइनस BS cos थीटा I. तो ये बनेगा ट्वाइस, माइनस ट्वाइस BS cos ऑफ थीटा
I. Is this clear? Okay. इसके बाद now the net magnetic field strength due to a bar magnet at a point on the equatorial line is equal to minus 2 times bs cos of theta I cap. Is this clear? Okay, we can write it as minus 2. What is bs? bs के लिए ये प्रूव करेंगे it is equal to mu naught divided by 4 pi m divided by r square plus l square. Okay? And now what is cos theta here? Consider this triangle, right angle triangle, and cos theta is equal to what? Cos theta किसके बराबर है? Thirdly, black hair. Black is L base, and here means hypotenuse. It is under root of r square plus L square. ये हमने लिखा L के बदले. Is this clear? Sorry, ये cos theta के बदले ये लिखा है. ठीक है? ओके. एंड नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहां से इसके साथ आई कैप भी है. दिस विल बिकम माइनस ट्वाइस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है? यहां पे देखिए ऊपर बनेगा ये एम एल एंड नीचे बनेगा बेसिस से पावर्स ऐड. तो इसका पावर जो है रूट के बदले हम रेज पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. तो इसका पावर है 1 बेसिस से पावर्स ऐड, ये बनेगा 3/2, 1.5 3/2. इज दिस क्लियर? ओके. तो यहां से आई कैप भी है साथ. तो सो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P on the equatorial line is equal to what? Minus times twice, ये इसके साथ रखेंगे twice L M divided by twice L M. इस तरह से लिखेंगे. सॉरी, पहले लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. अब ये 2 इसके साथ रखेंगे twice L M divided by R square plus L square raised by 3/2. This is I cap here. ठीक है? अब अगर ये आई कैप इसके साथ रखेंगे तो ये बनेगा यूजिंग फर्स्ट यूज कीजिए. ये बनेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2LM आई कैप इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो यहां पे आएगा m वेक्टर डिवाइडेड बाय r square plus L square raised power 3/2. Is this clear? And now this is the final expression for the magnetic field strength at any point on the equatorial line. Is this clear to you? This is the final expression, and this expression shows that ये equatorial line पे निकाला हमने expression. तो ये दिखा रहा है जो direction of magnetic field strength है, it is minus times the direction of what? Magnetic dipole moment. And it is the opposite. The direction of magnetic field strength at any point on the equatorial line of a bar magnet is opposite to the direction of magnetic dipole moment. Is this clear to you? The direction of magnetic field strength at any point on the equatorial line of a bar magnet is opposite to that of the magnetic dipole moment of the bar magnet. Is this clear to you? तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे देखिए. इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे. जब ये ऐड हो जाएंगे तो डबल हो जाएगा. तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इतना बड़ा होगा. इज दिस क्लियर? ये इतना बड़ा होगा, डबल होगा. दिस वुड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. और इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन. इज दिस क्लियर टू? तो ये मैथमेटिकली हमने दिखा दिया. जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी किस पर? इक्वेटोरियल लाइन पे, वो होगी अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. फॉर शॉर्ट डाइपोल, यहाँ पे सिंपल स्पेशल केस फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. अगर मैग्नेटिक डाइपोल वो छोटा होगा या एटॉमिक डाइपोल होगा
इन दैट केस या मॉलिक्यूलर डायपोल होगा तो उस वक्त जो R होगा इट वुड बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट L उस वक्त नेग्लिजिबल होगी देन दैट इज फॉर शॉर्ट डायपोल R is much greater than L. Then it means that L is negligible as compared to R. Then this will become B is equal to minus mu naught divided by 4 pi M divided by ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ये बनेगा R क्यूब. Is this clear? R cube. Okay. This implies that जो magnetic field strength है at any point on the equatorial line of a bar magnet, it varies inversely with the cube of the separation from the center of the dipole.